Hello dear students, welcome back again. Welcome to the portion which we had seen earlier, that is isomerism. In our online class we have seen some aspect of this topic isomerism. So I begin from the very first point, that is what is isomerism. Compounds with same molecular formula, different compounds with the same molecular formula shows isomerism. And two or more compounds with same molecular formula shows isomerism. It is broadly classified into two types. One is structural isomerism, another is stereoisomerism. Let us talk about this structural isomerism. What we know about this structural isomerism: compounds with same molecular formula with different structural formula shows structural isomerism. Same molecular formula but different structural formula. So structurally different but molecular formula remains the same shows structural isomerism. Whereas this stereoisomerism is something very unique. In what way unique? Different compounds have same structural formula but different arrangement of atoms or groups. सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर वाइज वैसा ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा इनका, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स. तो जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है दैट बिकम्स डिफरेंट, बिकॉज व्हेन वी कंसिडर कार्बन इज tetrahedral geometry and it has a three-dimensional structure. So around this carbon different atoms or groups are arranged. So this different arrangement provides stereoisomerism. फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी वही होगा, लेकिन डिफरेंट क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स. जैसे ये ABCD क्लॉकवाइज में है, इसी को ABCD को एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में ABCD को अरेंज कर दीजिए आप, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना. ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर इमेज हो गया, है ना. ये ऑब्जेक्ट और ये इसका मिरर इमेज बनेगा. तो क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट is what we call as stereoisomerism. So isomerism, two or more compounds having same molecular formula shows isomerism, and that divided into two types: structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism में क्या था कि same molecular formula different structural formula is what structural isomerism. Stereoisomerism में क्या है? Same molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atom or groups in three-dimensional space is what we call as stereoisomerism. Now we had also seen that structural isomerism is of five types. The first type is chain isomerism. Chain isomerism, it is due to different carbon skeleton. जो कार्बन चेन है उसे हम कहेंगे skeleton. So different carbon skeleton, different arrangement of carbon skeleton shows chain isomerism. या फिर सिंपल वर्ड में different arrangement of carbon chain in a molecule having same molecular formula
shows chain isomerism. जैसे हमने बात की थी कि मैं पेंटेन का फॉर्मूला ले लूं C5H12, तो इसे हम डिफरेंट चेन आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? 5 कार्बन, आप जो पहला अरेंजमेंट होगा 5 कार्बन नॉर्मल चेन में ले लो, फिर इसमें आप चेंज क्या कर सकते हैं? कार्बन चेन को चेंज करना है, ब्रांच बना दिया। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर 2 ब्रांच बना दिए, ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 है और यहाँ भी 5 है। रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो ये क्या है? कार्बन स्केलेटन, कार्बन चेन इज अरेंज्ड इन अ डिफरेंट manner, and that's why we call it as chain isomerism. Next comes position isomerism. A position isomerism is a part of structural isomerism. तो molecular formula तो वही रहेगा, functional group की position different हो जाएगी. Functional group will acquire different position here, है ना? पोजीशन नाम पोजीशन आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वही, क्या डिफरेंट रहेगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम बिकॉज कार्बन स्केलेटन रिमेन्स द सेम विथ सेम कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन को चेंज नहीं करना है, with same carbon skeleton position of functional group get changed, position of functional group differ। तो ये position of functional group differ करेगी। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, एकदम इजी वाला एग्जाम्पल। अब यही गिवन स्पेस को मैं यूज कर लेता हूं, चेन आइसोमर को ब्लॉक कर देते हैं। अब हम आते हैं, तो क्या लिखा हमने? विथ सेम कार्बन स्केलेटन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर। और हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था, जैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, C5H11OH, ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। अब कार्बन चेन वही रखेंगे और OH फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन को डिफर करे देंगे हम। तो ये 5 कार्बन, अब फर्स्ट वाले में क्या करें कि OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा दो, सेम कार्बन चेन OH ग्रुप को सेकंड पे लगा दो। नेक्स्ट वाला क्या होगा? वही 5 कार्बन एटम और OH कहाँ 336 हो गए, 5 कार्बन, तो ये थर्ड कार्बन पे OH लगा दो। सो वी आर गेटिंग डिफरेंट पोजीशन आइसोमर। जैसे ये होगा प्रोपेन 1 और पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। दूसरा क्या होगा? पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्या होगा? पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, क्योंकि थर्ड कार्बन पे यहां पर OH ग्रुप लगा है। तो पोजीशन बदल गई ना, पेंटेन पेंटेन पेंटेन। पोजीशन OH की 1, 2 and 3, and that's why we call it as position isomer। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप गेट डिफरेंट। Now next comes functional isomerism। Functional isomerism में क्या होगा? Same molecular formula but different functional group, है ना? Different compounds with same molecular formula will have different functional group। चलिए उसको यही समझाता हूं मैं, पहले इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। आपने देख लिया क्या? Functional isomer, different compounds with same molecular formula with
different functional group, different functional group, different functional group. अब वो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए? अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिले हमको। इसका एक एग्जांपल लिया था हमने, C2H6O, C2H6O, ये एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। बनेगा पहला फंक्शनल ग्रुप C2H5OH, इथेनॉल। आ गया C2H5OH, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, we get C2H5OH, इथेनॉल। नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल बनेगा CH3OCH3। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये बना डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप है, बाइवेलेंट ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहलिक ग्रुप, different functional group with same molecular formula will be the functional isomerism। करेक्ट है। नेक्स्ट इसी में आपको क्या मिलेगा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। C3H6O, C3H6O, एक कंपाउंड बनेगा CH3COCH3। है क्या फॉर्मूला? 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दिस इज डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट कंपाउंड क्या मिलेगा अब हमको? CH3 CH2 CHO। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 and 3 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 2 5 plus 1 6 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन, दिस इज प्रोपियोन अल्डिहाइड, दिस इज प्रोपियोन अल्डिहाइड। तो व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? Different compounds, same molecular formula with different functional group। पहले इसमें क्या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिला और दूसरा कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमको कीटोन, तो ये कीटोन और ये एल्डिहाइड, तो दे शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हियर आल्सो C2H6 अल्कोहल एंड ईथर, सो दे शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल इरेज करता हूं मैं, है ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये पढ़ लिया हमने विथ एग्जाम्पल। इतना आई थिंक मैंने लाइव क्लास में ले लिया था। अब इसके आगे नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। अब ये नए टाइप का आइसोमेरिज्म आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द either side of functional group, same molecular formula, because it is a part of structural formula, having same molecular formula but different arrangement of carbon chain or carbon atom on the either side of functional group। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, C4, हम लिखते हैं इथॉक्सी इथेन, C2H5O C2H5, तो C2H5 10O, C4H10O। ये इसका मेटामर कैसे बनेगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये सिंगल ऑक्सीजन है, इससे हम ईथर्स बना सकते हैं, है ना। ईथर्स को एक्सप्लेन करते, जैसे एक बनेगा CH3
CH2O CH2CH3। काउंट कर लो, कार्बन कितने दिख रहे बेटा हमको? 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3 to 5 10 हाइड्रोजन and 1 oxygen. This compound is known as ethoxyethane. It is named as ethoxyethane. तो एक बन गया कंपाउंड। क्या है अरेंजमेंट? 2 कार्बन ऑन द लेफ्ट, 2 कार्बन ऑन द राइट। तो ये तो इजी दिख रहा है, लेकिन इसी का मेटामर कैसा बनेगा आप देख सकते हैं। CH3O CH2 CH2 CH3 आ गया। अब कैसा है? ऑन द लेफ्ट साइड हाउ मेनी कार्बन? 1। ऑन द राइट साइड हाउ मेनी कार्बन? 3। तो ऑन द ईदर साइड ऑफ functional group we have different number of carbon atom and they are metamers to each other. Same molecular formula, different arrangement of carbon atoms on the either side. इसमें different क्या है? 3 on the right, 1 on the left. इसमें क्या different है कि left में भी 2 है, right में भी 2 है। तो different इसके comparison में ये different arrangement हो गया, so they are metamers. Okay, so this is what we get metamerism. So what is metamerism? Different compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon atoms or carbon chain on the either side of functional group. इसमें एक और example बनाते हैं हम। We take one more example of this. आपने अमाइंस फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, हो गया ये एग्जाम्पल। मैं इसे इरेज करता हूँ, है ना। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। सो टू हैव वी टेक हियर C4H11 C4H9 C4H11 H11N. So this is nitrogen containing compound and this will represent amines. This will represent amines. Amines are classified into 3 types: primary amine, secondary amine and tertiary amine. So this represents one structure: CH3 CH2 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 NH2. तो बेटा ये बना प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन वी नेम इट एज ब्यूटेनमाइन। ब्यूटेनमाइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 NH NH CH2 CH3। देखिए कार्बन काउंट तो कर लो, 4 कार्बन तो दिख रहे हैं। हाइड्रोजन 11, 5 + 5 10, 10 + 1 11 और ये नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा डाईइथाइल ईथर, आई एम सॉरी डाईइथाइल अमाइन। और ये है सेकेंडरी अमाइन। दिस इज सेकेंडरी अमाइन। ये कौन सा था? प्राइमरी अमाइन। ये बना सेकेंडरी अमाइन। इसी का फंक्शनल ग्रुप देखो चेंज हो गया, है ना। अब कैसा है कि ये नाइट्रोजन के लेफ्ट में 4 कार्बन, ये नाइट्रोजन के लेफ्ट में 2 और राइट में 2, तो दोनों एक दूसरे के मेटामर। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी का थर्ड आइसोमर बनेगा CH3 N C2H5. So 1 2 3 and 1 more 4. ये हो गया। काउंट कर लो कार्बन। 1 कार्बन, हियर आर द 2 3 3 + 1 4। हाइड्रोजन काउंट करना है 3 + 5 8 8 and 3 11।
तो हाइड्रोजन 11 हो गए और नाइट्रोजन 1, तो ये टर्शियरी अमाइन बना, है ना। इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, NN डाइमिथाइल इथेनमाइन, NN dimethyl ethenamine is the nomenclature and this is a tertiary amine. तो एक ही फॉर्मूला C4H11N represents amines, कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। बॉक्स में लिया, इसे कहते हैं NH2 को प्राइमरी अमाइन, NH को कहते हैं सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी नाइट्रोजन को कहते हैं टर्शियरी अमाइन। तो मेटामेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म where different compounds have same molecular formula but different number of carbon atoms on the either side of functional group. Next structural isomerism जो हमको पढ़ना है वो एकदम नया है, टॉटोमेरिज्म। अब नाम ही थोड़ा सा अजीब है, टॉटोमेरिज्म। तो कैसा होता है कि टॉटोमेरिज्म में कंपाउंड्स के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी रहेगा, but there is some arrangement which differ from the other. कहने का मतलब सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं कि some compounds are obtained in a form of mixture. And different compounds have different functional group and they are in dynamic equilibrium. So mixture of compounds which differ structurally, structural formula different होगा, which differ structurally and shows dynamic equilibrium, dynamic और rapid equilibrium, इक्विलिब्रियम कैसा आता है ये समझेंगे अभी हम, है ना। तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट शोज डायनामिक और रैपिड इक्विलिब्रियम। इसका एग्जाम्पल यही लिखते हैं हम, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका एग्जाम्पल ये देखिए, ये कंपाउंड को आप जानते हैं, आपका जाना पहचाना कंपाउंड है ये। दिस कंपाउंड CH3CO, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, वी कॉल इट एज कीटो, है ना। CH3 जैसा अभी लिखे थे ना हमने, CH3COCH3, तो एक वैलेंसी फ्री है यहाँ पर, वो CH3 में चला गया। सो कीटो, दिस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये देखिए इक्विलिब्रियम का साइन, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो दैट विल गिव अ डायनामिक इक्विलिब्रियम टू द मॉलिक्यूल। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा, जरा यहां मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको।
तो ये कीटो ग्रुप देखेंगे आप, है ना, कीटो ग्रुप दिख रहा है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, proton transfer takes place, proton hydrogen, this proton transfer takes place and we get the molecule somewhat like this. देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड चला गया कार्बन के बीच में, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O काय में कन्वर्ट हो गया, कीटोनिक ग्रुप काय में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप में। सही है, कीटोन काय में कन्वर्ट हो गया एल्कोहलिक ग्रुप में। एल्कोहल को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, OL। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन, अल्कीन, E तो उसका E ड्रॉप कर देंगे और वहां पर OL लगा देंगे, तो ये कंपाउंड बना इनॉल। तो ये कहते हैं हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। समझे आप, तो ये बना हमारा आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, वेयर सेम मॉलिक्यूलर, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वही, नंबर ऑफ हाइड्रोजन वही, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ऑब्टेन्ड इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर। इसमें ये मिक्सचर फॉर्म में रहेंगे, करेक्ट, डिफरेंट, स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड शोज डायनामिक और रैपिड इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है कि थोड़े देर इनॉल फॉर्म में रहेगा, फिर कीटो फॉर्म में आएगा, फिर कीटो वाला इनॉल में इनॉल कीटो में, तो ये इक्विलिब्रियम इनका चलता रहेगा। जैसा सी-सॉ में हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, वैसे टाइप का इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा। वी कॉल इट एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, तो आज हमने आइसोमेरिज्म के सभी टाइप को देख लिया। आइसोमेरिज्म कब दिखता है बेटा अपने को, कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी कॉल इट एज आइसोमेरिज्म फिनोमिना। आइसोमेरिज्म दो तरीके से, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक अरेंजमेंट के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट दोनों यहाँ पर अलग अलग टर्म हो गई, है ना। बोलने के लिए तो एक ही है, स्ट्रक्चर बनाओ या अरेंज करो, लेकिन कैसा है, स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग अलग आ जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर ये अरेंजमेंट में क्या है, बॉन्डिंग वैसा ही रहेगा, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट है, ग्रुप का अरेंजमेंट है, इन 3 डायमेंशन स्पेस दैट गेट चेंज, and that is what we call as stereoisomerism. It divided into 2 types, geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism हम आपको पढ़ाएंगे एल्कीन्स में, एल्कीन shows geometrical isomerism, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे ये 12th क्लास में, जब अल्काइल हैलाइड का डिटेल स्टडी होगा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का। कमिंग बैक टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट, 5 टाइप्स। चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन इज डिफरेंट। पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेम कार्बन स्केलेटन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर। हमने एग्जांपल लिया था पेंटाइल अल्कोहल का, तो पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, OL अल्कोहल की पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। उसमें हमने ईथर और अल्कोहल को देखा था, हमने उसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देखा था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म, हाँ जी, मेटामेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different structural formula. In what way structure is different? Different number of carbon atoms on the either side of functional group. That is what we call as metamerism.
और टॉटोमेरिज्म क्या है कि सम मॉलिक्यूल दे एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर, है ना, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच डिफर स्ट्रक्चरली, mixture of compound which differ structurally and shows a dynamic or rapid equilibrium is what we call as tautomerism. So बेटा हम लोगों ने पूरा आइसोमेरिज्म अब एक बार रिवाइज कर लिया है। जिन्होंने क्लास मिस किया था उनके लिए ये पूरा वीडियो लेक्चर अभी अवेलेबल है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप जो असाइनमेंट मैं दिया था वो आपने कंप्लीट किया होगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।